Okay. Hi friends, we are back with morphology, right? Today is the seventh week that we are into the topic of morphology, and in all probability, we'll try and wind this up today. Now, in this entire 6 weeks, or rather the seventh week, right, we have finished morphology of root, stem, leaf, flower, inflorescence, fruit, right? Now we bring this big discussion to a close by discussing seed today, right? And after seed, we will be talking about the topic of some families and their examples, right? So we start. Okay. So as you know that this has been our journey, right? So seed. Now, what is a seed? Seed is defined as a fertilized and a metamorphosed ovule, right? We have studied androecium and gynoecium, right? Androecium will produce the male gametes, gynoecium will produce the female gametes. Pollination will bring the male and female gametes together. The male gametes fuse with the female gametes, right? The female gamete is present inside the ovule. So once the male gametes fuse with the female gametes, the ovule undergoes a metamorphosis, a change, and that ovule now becomes the seed. Obviously, the seed is present inside the fruit. That is the hallmark of an angiosperm. Right? Sperma matlab seed. Angio is inside. The seeds are inside the fruit. That's why it's an angiosperm. So a fertilized and a metamorphosed ovule containing an embryo enclosed in resistant protective coats. Right? The seed has two protective coats. The outer called as the testa and the inner protective coat called as the tegmen. ठीक है? So seed is the product of fertilization, and seed is the stage, right, which ovule gets converted, right? Ovary gets converted to fruit, ovule gets converted to seed. Let's see the next statement. Seed is also described as the initial dormant stage of the diploid sporophytic generation in the life cycle of spermatophytes or phanerogams. बाप रे बाप, इतना डेडली स्टेटमेंट देखते हैं, राइट? अब सबसे पहले तो ये इनिशियल समझ में आ गया, डोरमेंट समझ में, डोरमेंट यानी कि इनएक्टिव स्टेज, राइट ना? डिप्लॉयड, ठीक है, 2Na समझ में आता है। ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन, स्पर्मेटोफाइट तो समझ में आ गया, फेनरोगैम्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोफाइट। आई टोल्ड यू स्पर्मा मतलब सीड, फाइटा इज प्लांट, सो प्लांट्स व्हिच प्रोड्यूस सीड्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट्स। ओके, फेनरोगैम्स जिसमें जिम्नो एंजियो दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अब ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन क्या है, ये देखो। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्रेंड्स, राइट? उसमें ये जो प्लांट है ना, पूरा रूट स्टेम लीफ वाला, राइट? अब उसमें आता है फ्लावर। फ्लावर में से यू हैव एंड्रोशियम गाइनोशियम। एंड्रोशियम विल प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स, पोलन ग्रेन्स, एंड गाइनोशियम विल प्रोड्यूस मेगास्पोर्स, जिससे फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, यानी ये स्ट्रक्चर पूरा प्लांट स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट, राइट? ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या है? स्पोरोफाइट। सो स्पोरोफाइट से आएंगे स्पोर्स, देखो एंथर, ओवरी, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, ये देखो माइक्रोस्पोर्स,
आ गया पोलन ग्रेन, फ्यूजन आ गया, ये देखो एग बन गया है यहां पर, और अब इससे बनेगा जाइगोट। अब ये पूरा स्ट्रक्चर किसके अंदर है? कंटेनिंग एन एम्ब्रियो। व्हाट कंटेन्स एन एम्ब्रियो? सीड। यानी जहां से स्पोरोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट होता है, दैट स्टार्टिंग पॉइंट इज सीड। सो क्या लिखा है यहां पे? इट इज डिस्क्राइब्ड एज द इनिशियल डोरमेंट स्टेज। व्हाई इट इज कॉल्ड डोरमेंट स्टेज फ्रेंड्स? डोरमेंट क्योंकि जैसे ही सीड बाहर निकलता है, इट डज नॉट स्टार्ट डेवलपिंग, it will wait till atmospheric conditions, environmental conditions are favorable, and then it will allow the germination, ताकि प्लांट जब बाहर आए, it gets all favorable conditions for growth। तो जब तक के कंडीशंस उसके हिसाब से फेवरेबल नहीं होगा, इट विल लाई इनएक्टिव, इसलिए उसको क्या बोला है? डोरमेंट ऑफ द डिप्लॉयड। ये देखो, कैन आई सी स्पोरोफाइटिक जनरेशन में 2n लिखा हुआ है, इट इज द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक जनरेशन, यानी स्पोरोफाइटिक जनरेशन का फर्स्ट स्टेज इज द सीड। आई होप दिस स्टेटमेंट इज क्लियर नाउ प्लीज। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ सीड। ओके, बट अब if we have to understand the structure of seed friends, we will have to first understand the structure of ovule, because it is the ovule which becomes the seed. See, if I directly start explaining the structure of seed के बाहर टेस्टा है, टेगमेन है, माइक्रोपाइल है, हाइलम है, रैफे है, तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा अपने को, राइट? तो यहां पे अपने को थोड़ा सा टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, and we will have to take 2 steps back to understand ovule, right? Because it is the ovule which is becoming the seed, it is the ovule which becomes the seed. So अपन start करते हैं कहां से? we will start with the carpel. कार्पेल स्ट्रक्चर मालूम है अपने को, मेगास्पोरोफिल बोलते हैं इसको, ठीक है? अब ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स, कैन यू सी ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू वन सेंट्रल स्ट्रक्चर, राइट? वो ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू प्लेसेंटा, राइट? प्लेसेंटेशन पढ़ा है हमने, 5 टाइप्स, ठीक है ना? ओके, सो दिस इज कार्पेल। सो अब क्या होगा? पोलन ग्रेन यहां पर डिपॉजिट होगा, यहां पर पोलन ट्यूब आएगा, पोलन ट्यूब मेल गैमेट्स को ओव्यूल तक लेके जाएगा, राइट? एंड यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, तो अब ये ओव्यूल जो है वो बन जाएगा सीड। सो फर्स्ट वी विल टेक अप द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल। सी, दिस इज हाउ द ओव्यूल लुक्स लाइक, राइट? ये जो स्मॉल ब्लैक डॉट स्ट्रक्चर है, इसी को अपने बड़ा किया यहां पे। ओके, नाउ द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल, प्लीज पे अटेंशन, राइट, इज कॉल्ड एज द न्यूसेलस, right? ये सब we will be studying when we do chapter called as reproduction in plants. So वहां पर we'll have sexual reproduction, वहां पर we'll have to study types of ovules also. यहाँ पर सिर्फ seed को समझने के लिए I'm giving you a basic structure of an ovule, ठीक है ना? Yes, I would prefer that जहां पे तुम्हारा seed का description है, you can please draw this structure also, right? Now ये देखो margin, ये nucellus का margin है. This is the nucellus. The nucellus has got 2 protective coverings. Can you see 1 and 2? These are called as integuments. देखो 2 मार्क किया हुआ है. So ये जो 2 protective coverings है, इंटेग्यूमेंट्स, राइट? अब आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा, यही 2 इंटेग्यूमेंट्स जाके सीड कोट के 2 लेयर बन जाएंगे, टेस्टा एंड टेगमेन। ओके, नाउ टेल मी, does the integument cover the nucellus completely? नहीं, यहां पे एक छोटा सा गैप रहता है। Can you see this gap everybody please? This gap is called as micropyle, right? Micropyle, right? क्योंकि जब पोलन ट्यूब यहां से आएगा तो how will it get inside the ovule? It will enter through the micropyle, तब जाके ये एम्ब्रियो सैक यानी कि ये फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचेगा, ठीक है? सो ये माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के एग्जैक्टली ऑपोजिट देयर इज अ पॉइंट कॉल्ड एज चलाजा, राइट? नाउ चलाजा इज द
एकदम नीचे वाला बेस पार्ट ऑफ द ओव्यूल जहां से इंटेग्यूमेंट स्टार्ट होते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं चलाजा। ओके, अब कैन यू सी दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर यहां पर नीचे, राइट, उसको बोलते हैं फ्यूनिकल, राइट। वंस आई से फ्यूनिकल स्टॉक, अगर फ्यूनिकल नहीं है तो ओव्यूल विल बिकम सेसाइल, फ्यूनिक्यूलेट एंड सेसाइल, राइट ना। पेडिसिलेट फ्लावर, सेसाइल किया था हमने, याद ना। पिटियोलेट लीफ, नहीं पिटियोल है तो सेसाइल, फ्यूनिकल है तो ओव्यूल इज फ्यूनिक्यूलेट, नहीं है तो सेसाइल, ठीक है। तो अब ये फ्यूनिकल क्या करेगा, पूरे ओव्यूल को प्लासेंटा से अटैच करेगा। सो ओव्यूल और प्लासेंटा के बीच का कनेक्शन इज फ्यूनिकल, सो फ्यूनिकल स्टॉक बन जाता है उसका, ठीक है। सो अब फ्यूनिकल जहां पे चलाजा को टच करता है, यहां पर ये देखो, ये एरिया, ये वाला, उसको बोलते हैं हाइलम। वो लेबल नहीं किया हुआ है, राइट ना, हाइलम, HILUM, हाइलम, ठीक है। सो हाइलम इज द पॉइंट वेयर द फ्यूनिकल एंड द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, ये पूरी बॉडी है, दे मीट ईच अदर, ठीक है। अब अपने पास बीच का सेंट्रल पार्ट है न्यूसेलस, न्यूसेलस के ऊपर दो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं, इंटेग्यूमेंट्स, जो कंप्लीटली कवर नहीं करते हैं। एक छोटा सा ओपनिंग रह जाता है माइक्रोपाइल। आई टेल यू माइक्रोपाइल का यूज क्या है, वहां से पोलन ट्यूब अंदर आएगा फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, राइट। नाउ पॉइंट ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल इज चलाजा। आई टेल यू इंटेग्यूमेंट्स यहां से स्टार्ट होते हैं ऊपर, राइट, और फ्यूनिकल और चलाजा का मीटिंग पॉइंट इज हाइलम, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर अपने को दिख रहा है, यहां पर माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल, कैन यू सी ऑल ऑफ देम आर इन द स्ट्रेट लाइन, इसलिए हम इस ओव्यूल को बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट, राइट ना, ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट, ठीक है। सो तुम्हारा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, ये स्ट्रेट ओव्यूल है, राइट। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल ये बॉडी है और ये फ्यूनिकल है फॉर एग्जांपल, राइट। अब इसी को समझो, ये पूरी बॉडी को 180 डिग्री में टर्न करता हूं नीचे, तो कैसे दिखेगा ये देखो ऐसे दिखेगा, राइट। अब देखो ये माइक्रोपाइल जो था, ये पूरा टर्न होके नीचे आ गया, क्या नहीं, माइक्रोपाइल यहां पे आ गया देखो, राइट ना। सो अब ये जो ओव्यूल है ये एकदम उल्टा है, राइट। ऑर्थोट्रोपस 0 डिग्री पे था, ये 180 पे, इसको हम लोग बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल। फॉर द टाइम बीइंग यू रिमेंबर टू टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, ऑर्थोट्रोपस एंड एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल एंड एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है, राइट। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है, राइट। ये देखो, जब ये पूरा बॉडी टर्न होगा, ये तुम्हारा फ्यूनिकल है, तो विल नॉट द बॉडी गेट फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल, कैन आई सी द लाइन ऑफ फ्यूजन, ये रिज, दिस इज कॉल्ड एज रैफे, राइट ना। सो जहां पर वो फ्यूनिकल जो है अटैच हो जाएगा बॉडी से, उसको बोलेंगे रैफे, ठीक है ना। आगे आएगा अपने को डिस्कशन में। ज्यादातर ओव्यूल्स, राइट ना, मोस्ट ऑफ द ओव्यूल्स आर एनाट्रोपस, ऑलमोस्ट 80 to 82% ऑफ ओव्यूल्स आर एनाट्रोपस। सी, ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताने के लिए पहले मैंने ऑर्थो बताया, जब ऑर्थो समझ में आया, देन आई एम टेलिंग यू दैट ये एक्चुअली उल्टा स्ट्रक्चर है, राइट। व्हेन यू डू द स्ट्रक्चर ऑफ सीड, आई विल शो यू द रिलेशन आल्सो, राइट। आई होप द स्ट्रक्चर्स इन द ओव्यूल आर क्लियर टू अस, ठीक है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोटिलिडनस सीड, राइट। ऑब्वियसली या तो डाइकॉट होगा या मोनोकॉट, सो वी गो टू स्टडी बोथ ऑफ देम। कवरिंग outer thick and resistant layer called testa, inner thin membranous layer called tegmen। अब बताओ, राइट ना। सो इंटेग्यूमेंट्स के दो लेयर आर नाउ बिकमिंग टेस्टा एंड टेगमेन, राइट। ये देखो सीड कोट, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, राइट। सीड इज अटैच्ड टू द इनर वॉल ऑफ द फ्रूट बाय अ स्मॉल स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल, ओव्यूल का फ्यूनिकल, यहां भी फ्यूनिकल, at a point called hilum, right ना।
A small pore is present close to hilum in the testa called micropyle. Look at the diagram. Can I see hilum and micropyle close to each other? I'll take you to the previous slide एक बार खाली. ये देखो, यहां पर हाइलम यहां पर है, यहां पे देखो, और माइक्रोपाइल यहां पर है. But look at this diagram, देखो hilum and micropyle, are they close to each other? So if hilum and micropyle are close to each other, that means definitely we are doing which type of an ovule, friends? It is a anatropous ovule, right? ये मालूम पड़ता है अपने में यहां से. अब the micropyle of the ovule becomes the micropyle of the seed, right? ओव्यूल में माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या था? पोलन ट्यूब अंदर आएगा, ठीक है ना? तो अब सीड में भी माइक्रोपाइल है. ऑब्वियसली सीड को जर्मिनेट करना पड़ेगा, और जर्मिनेशन के टाइम पे सबसे पहले रेडिकल बाहर आता है. तो रेडिकल बाहर कहां से आएगा? माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल से आएगा. क्लियर प्लीज एवरीबॉडी? ओके. रिज में भी सीन इन कंटिन्यूएशन विद हाइलम ऑन टेस्टा विच इज कॉल्ड रैफे. मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, ये एनाट्रोपस में ही मिलेगा आपको रैफे, राइट? तो रैफे का डिस्क्रिप्शन है, मतलब एक एनाट्रोपस का डिस्क्रिप्शन है. विद इन द सीड कोट अंदर you will have an embryo consisting of an embryo axis tigellum, lecture number 1, right? याद करो, मैंने पढ़ा है tigellum. Okay, just start recollecting what is tigellum. And two cotyledons, obviously dicot है, तो we are talking about two cotyledons. The contents within the seed coat are together called as the kernel, right? अब ये embryo axis में क्या क्या है? टू एंड्स, रेडिकल एंड प्लम्यूल. याद आ रहा है? टिजेलम, टिजेलम याद दिलाऊं? ये देखो, हाँ याद आया कि नहीं? वी हैव डन दिस इन लेक्चर नंबर 1, राइट? नाउ अंडरस्टैंड व्हाई आई हैड इंट्रोड्यूस्ड दैट टिजेलम इन लेक्चर नंबर 1, राइट? वहां पे फूड इज स्टोर्ड इन द हाइपोकॉटल वाला पॉइंट बताने के लिए मैंने बताया था, बट आगे अपना ये पॉइंट भी आने वाला था, ठीक है? So embryo axis has two ends, radical and plumule. यहाँ पे radical, plumule है. Cotyledons are attached to the axis at a region which represents first node. बताया मैंने, first node है, right? Plumule और first node के बीच का area is epicotyl, and first node और radical के बीच का area is called as hypocotyl. So this is the structure of the dicot seed. Are we clear with the structure of dicot seed and how ovule is converting into seed? Right? अब सीड के अंदर अपार्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो देयर इज वन मोर स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म, राइट? क्योंकि मेल गैमेट्स जो है ना वो दो बनते हैं. मेल गैप, पोलन ग्रेन से यू हैव टू मेल गैमेट्स, एंड दीज टू मेल गैमेट्स, वन फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म द एम्ब्रियो, the other fuses with a structure called secondary nucleus. Secondary nucleus जो कि diploid structure होता है. Male gamete haploid होता है, secondary nucleus diploid होता है. तो अब ये जो fusion होगा वो triploid बन जाएगा. That triploid structure is endosperm, right? So जितने gamete structures है वो सब haploid, राइट ना? फ्यूजन स्ट्रक्चर्स है वो डिप्लॉयड, और एक सिंगल ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो आपको पूरे स्ट्रक्चर में मिलेगा वो कौन सा है? एंडोस्पर्म. ओके, नाउ सीड्स कैन आइदर बी एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सी, एंडोस्पर्म इज द नरिशिंग. मैंने क्या बोला? सीड डॉर्मेंट रहता है, राइट ना? अब डॉर्मेंट सीड के अंदर एम्ब्रियो अंदर है. एम्ब्रियो तो लिविंग स्ट्रक्चर है. अगर डॉर्मेंट है तो अंदर एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन क्या है? द न्यूट्रिशन इज एंडोस्पर्म, राइट ना? द न्यूट्रिशन इज एंडोस्पर्म. सो वहां से वो न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है? अब समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, ये जो कॉटिलिडन है ना, इट स्टार्ट्स बिकमिंग अ लिटिल ग्रीडी, और ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खा जाएगा फुल. इट विल ईट अप द एंटायर एंडोस्पर्म. सो व्हेन यू ओपन अप द सीड, देयर इज नो एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म ही नहीं है. कौन कौन खा गया उसको?
cotyledon has eaten up that endosperm, right? So how will cotyledon look in such a seed? Mota tagda, thick, fleshy, right? And where is the endosperm? Gayab, right? Now, so such a seed is called as a non-endospermic seed, because endosperm absent nahi hai. It is not absent, right? Now, please don't write endosperm absent, endosperm present. No, non-endospermic seed में the cotyledon has taken up the entire endosperm, और endospermic seed में cotyledon does not take up, endosperm रहेगा, right? So I have brought you some differences between a endospermic and a non-endospermic seed, right? Let's have a look. ये देखो, endospermic seed, endosperm is present. In non-endospermic seed, endosperm absent लिखा, please यहाँ पे absent is a misnomer, right? ये तो डायरेक्ट मैंने नेट से लिया है, लेकिन बताओ it's a misnomer, absent नहीं. Food is not stored in cotyledons. यहाँ पे क्या लिखा? Food is stored in cotyledons. Cotyledons are thin and papery, क्योंकि एंडोस्पर्म को खाया नहीं है लोग ने. यहाँ पे cotyledons are thick and fleshy. Why? Because the cotyledon is eaten up the entire endosperm. पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 अभी नहीं लिखना है, राइट ना? ये जब हम लोग रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर करेंगे तब अपने को आएगा, अब समझ में भी नहीं आएगा, तो प्लीज इसको मत लिखना. पॉइंट नंबर 6 इज एग्जाम्पल. ठीक है? Are we clear with this difference between endospermic and non-endospermic seed? Please make a note about this. Please make a note about this. ठीक है? Okay. So this is about the structure of a dicot seed. But what about a monocot seed? Now, a monocot seed में example, very good example to study is maize, right? Maize का seed. Wait a minute, maize हम लोग ने fruit में भी किया था. Caryopsis, caryopsis, थोड़ा सा स्ट्रेस करेंगे तो याद आ जाएगा. caryopsis देखते चलो. Maize grain represents a single seeded fruit. तो अगर वो मेज का ग्रेन है, पूछा गया कि इट इज अ सीड और अ फ्रूट, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट दैट स्मॉल येलो पार्ट ऑफ दैट मकई, राइट ना? कॉर्न, right? Yes, this is that small yellow part, right? Now if you closely look at that small yellow part, right, that small conical part, right? ना जो नीचे पॉइंटेड पार्ट रहेगा वहां पे थोड़ा सा व्हाइटिश रहेगा वो, और बाकी पूरा येलो रहेगा, right? Because that yellow part is that endosperm. When you bite into it, it is very juicy. Endosperm है, और जो नीचे whitish part है ना, वहां पर embryo situated है, right? सीड में दो ही स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. सीड में you will have only two structures, embryo, endosperm, right? अच्छा. Single seeded fruit in which the seed coat and fruit wall are inseparable. ये देखो, seed coat and fruit wall. Seed coat testa, fruit wall pericarp. Seed coat is pericarp. आ रहा है समझ में बराबर, प्लीज? So यहाँ पर testa and pericarp are fused, and this fused structure is called as hull. Hull, hull, right? The maize का fruit is caryopsis. It is a simple fruit. Simple में कितने आते हैं? Dry and fleshy. तो ये है dry. Dry में dehiscent, indehiscent. तो ये है indehiscent, right? Caryopsis. On one side of the grain is a small opaque whitish area. I told you इसमें embryo situated है. Thin layer around the grain is formed by fusion of seed coat and fruit wall, which is called hull, right? The grain is divided into two unequal portions. Now let's go inside. ये देखो हम लोग अंदर पहुंच गए यहाँ पर, right? तो ये जो बड़ा वाला पोर्शन है is the endosperm, और ये छोटा वाला पोर्शन है that is the embryo, right? अब ये जो लेयर है जो उसको अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यहां पर लेबल नहीं किया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एपिथेलियम. We will call this as epithelium. So the epithelium is dividing the monocot seed, maize का seed, into that endosperm and the embryo part. ठीक है? Okay.
The embryo obviously is the food storage tissue. Embryo consists of a single shield shaped cotyledon. ये रहा cotyledon, ये जो पूरा cotyledon वाला part है. See, this is a schematically represented structure, right? If you want, you can refer to 12th standard का NCERT, right? उसमें monocot seed का diagram भी दिया हुआ है, right? So ये NCERT based diagram है. तो ये जो स्क्यूटेलम है वो सिंगल कॉटिलिडन है. अगेन कॉटिलिडन और एक्सिस होगा. एक्सिस मतलब टिजेलम अपना, राइट ना. टिजेलम पे कितने पॉइंट होते हैं? रेडिकल, प्लेम्यूल, फर्स्ट नोड. तो फर्स्ट नोड पे अब कितने कॉटिलिडन्स अटैच्ड है? सिंगल. और ये बड़ा है, राइट. एंड दिस बिग कॉटिलिडन इज नोन एज स्क्यूटेलम. This big cotyledon is known as scutellum. ठीक है? That means dicot has to take nourishment from two cotyledons, whereas monocot has to take nourishment from a single cotyledon. Single source है उसका nutrition का. So monocots are generally more evolved than dicots. Right ना? हम लोग के दिमाग में हमेशा आता है कि भाई monocot, थोड़ा सा younger brother, dicot अच्छा, no. एवोल्यूशन में डाइकॉट पहले आया, मोनोकॉट. सो विच आर द लेटेस्ट वंस? मोनोकॉट्स. ठीक है. प्लेम्यूल इज सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव शीथ कॉल्ड कोलियोटाइल. यहां पे देखो लेबल्ड है कोलियोटाइल, राइट. एंड रेडिकल इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव शीथ कॉल्ड कोलियोराइजा, राइट. सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकॉट सीड इज देयर. सो वी हैव डन डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर, उसमें एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक का डिफरेंस भी किया हमने, एंड वी हैव कवर्ड मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर also, right. This winds up with our discussion on seed. In the next video we are going to see what are the various families, right. Thanks all.